This is All India Radio. This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. You will now listen to a consolidated radio report on the National Conclave Mann Ki Baat at 100, held earlier today at Vigyan Bhavan in New Delhi. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's popular citizen-centric program Mann Ki Baat, that was first broadcast on the 3rd of October 2014, will be completing 100 episodes this Sunday, the 30th of April at 11 am. Honorable Vice President of India Shri Jagdeep Dhankad graced the inaugural session of the National Conclave Mann Ki Baat at 100 in the presence of Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Apurva Chandra, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, and Shri Gaurav Dwivedi, Chief Executive Officer, Prasar Bharati, earlier today. Also present were 100 esteemed citizens mentioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in the various episodes of Mann Ki Baat as special invitees. Artists promoting and preserving traditional culture, art and crafts, champions of environmental protection, COVID warriors, and frontline workers. A momentous day in the remarkable journey of Mann Ki Baat, a confluence of new possibilities and constructive dialogues involving the changemakers of New India was witnessed at Vigyan Bhavan earlier today. In his inaugural address, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, spoke about the popularity of Honorable Prime Minister's program across the length and the breadth of the country. मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। कुछ चुनौती मेरे सामने आई और सुनने की एक खास वजह थी। वो कौन शख्स है who would not like to be inspired, motivated, instructed, informed कि मेरा भारत क्या है। I have not missed a single episode. इस तरीके से मेरे व्यक्तिगत छोटे जीवन में 20 जुलाई का महत्व हो गया। देश के इतिहास में 2014 एक टर्निंग पॉइंट है। I would call it an epochal development. I will call it a development that has shaped the destiny of India, taken us on a path of progress. We are on the rise as never before and the rise is unstoppable. 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद भारत को राजनीतिक स्थायित्व सदन में मिला और एक पार्टी का शासन आया। कहते हैं कि जिसके विवाही नहीं हुई वो विवाही की पीड़ा नहीं समझ सकता। जिसके पांव में विवाही हो गई वो जानता है कितनी कष्टदायक है। I was part of a government of more than a dozen parties in 89 to 91. उस कोलिएशन गवर्नमेंट के अंदर मैं मंत्री था और मंत्री भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का था। जानता हूं कोलिएशन के कंपल्शंस बहुत भयानक होते हैं। कोलिएशन इज अ ब्रेक ऑन आवर डेवलपमेंट व्हीकल। 2014 में ये बदलाव आया, पर 2014 में एक जो दूसरा बदलाव आया और जिसकी वजह से हम आज यहां पर हैं, और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर। 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं। उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। भारत के लोगों की विकास यात्रा में मन की बात का कितना योगदान है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कह दिया। पर दिस ग्रेट जर्नी, a historical milestone, unprecedented, का शतक पूरा हो रहा है।
30 अप्रैल 2023 को हमारे मंत्री जी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और आमिर ने लगान के अंदर क्रिकेट खेली है। पर यह एक ऐसा शतक है देश के प्रधानमंत्री का, विश्व के महानतम नेता का, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन द प्लेनेट एट द मोमेंट। ऐसा नेता जिसने महात्मा गांधी की बात को दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा वॉर इज नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली वे आउट। गत वर्ष उन्होंने कहा वी आर नॉट लिविंग इन एरा ऑफ एक्सपेंशन। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब ऐसी बात हुई तो अनुराग जी, ये एक ऐसा शतक है जिसमें बैट्समैन तो ख्याति प्राप्त कर ही रहा है, बॉलर भी खुश है, विकेट कीपर भी खुश है, फील्डर भी खुश है, दर्शक भी खुश है। ऐसा अजूबा और कहीं मिलेगा नहीं। यह सिलसिला जारी रहेगा, यह सिलसिला रुकेगा नहीं और यह देश के हित में है, विश्व के हित में है। मन की बात एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ सेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशनल इथोस। ग्रीटिंग्स टू द एंटायर नेशन, salutations to the architect of Man Ki Baat. Congratulations to him for attaining milestone Man Ki Baat at 100. Giving him best wishes to shape the destiny of Bharat at 100. Thank you. As part of the mega national conclave Man Ki Baat at 100, 4 thematic sessions featuring eminent personalities and subject experts were held at Vigyan Bhavan. The first thematic session of Man Ki Baat at 100, the national conclave, was on Nari Shakti. The session was moderated by Srimati Richa Anirudh, featuring Ms. Kiran Bedi, Ms. Deepa Malik, Srimati Ravina Tandon, and other eminent speakers from different walks of life. The panel elucidated on how women-led development has been a central dimension of India's progress and how Man Ki Baat has emerged as an efficient tool in ensuring women's participation in India's growth story. जब लड़की को कहा जाए कि तुम पराया धन हो, तुम पराया धन हो, तुम you are, this is only a temporary house for you as parents, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर तो अभी आना है। तो अब लड़की को कितना भी पढ़ा लो, वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं लेती, वो इनसिक्योरिटी लेती है। और भाइयों को भी ये होता है कि मेरी बहन की शादी कब होगी, वो कब जाएगी और वो कब दूसरे घर में, और ये घर तो मेरा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमने आने 25 साल में चाहते हैं कि हम महिलाओं की ताकत बढ़े, उसको आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता दिलानी होगी। Financial independence and self-reliance. Without financial reliance, you cannot have a woman strong. जो औरत दूसरे पर निर्भर करेगी खाने पीने के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए, पालन पोषण करने के लिए, वह स्ट्रांग नहीं हो सकती, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो मेरा तो पहला आंदोलन इस देश को है पेरेंट्स की माइंडसेट, और पेरेंट्स ही में नहीं, बुजुर्गों के, जो बुजुर्ग भी हैं फैमिली में। यू हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज इन इंडिया, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट? व्हाई डोंट दे ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली? दोनों को पढ़ाएं, दोनों को लायक बनाएं, दोनों को बोले तुमने आत्मनिर्भरता करनी है। इफ दिस इज अ मैसेज इक्वली टू बॉयज एंड गर्ल्स, द एटीट्यूड ऑफ द गर्ल्स विल चेंज, एंड देयर आफ्टर वो फिर सोचने लग जाएंगी मैंने अपनी कमाई कैसे करनी है, मैंने चाहे पॉकेट मनी ही कमानी हो, मैं हुनर, कौन सा हुनर लूं। जब तक वो और हुनर उनको देना है, हुनर कहां से आएगा? स्कूलों से आएगा। नाउ इट्स द टीचर, द स्कूल विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ब्रिंगिंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग। If vocational training में now the role of the schools, the teachers, they must inculcate a skill, a vocational skill in the minds and hands of the girls. If we do not do this, we will be losing every single day. आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ आपके सामने, हमारे माँ बाप ने हमको कभी नहीं कहा था कि तुम पराया धन हो। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला था कि तुम पराया धन हो।
मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला था कि तुम में दूसरे पर निर्भर होना। और मैं आज ये 70 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 70 years ago जो मेरे माँ बाप ने कहा, यही आज हर लड़की को चाहिए कि वह भी बोले कि तुम अपने भाई से कम नहीं हो। जैसे भाई ने आगे परिवार को चलाना है, तुमने भी परिवार को चलाना है, तुमने भी भाई जैसे परिवार को चलाना है। तुम भी हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम भी। ये नहीं माँ बाप का जिम्मेवारी सिर्फ लड़के की, नहीं, माँ बाप की जिम्मेवारी लड़की भी है। अगर कमाऊ नहीं होगी तो कैसे कैसे काम करेगी। तीसरी चीज, आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, हुनर बाय द टीचर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़की को खिलाओ, उसको खेलने दो। जब तक आप लड़की को खेलने नहीं दोगे वो खुलेगी कैसे, उसको करेज कैसे आएगी, हिम्मत कैसे आएगी। खिलाड़ी जब तक लड़की नहीं बनेगी, और यहाँ पर खिलाड़ी है, माँ बाप उसको रोके मत खिलाड़ी बनने से, स्कूल्स उसको खेलने दे, और उस खेलने से उसको क्या मिलेगी, तंदुरुस्ती। Our girls are very weak, they are anemic, they are not fit sometimes or healthy to be mothers. तो जब वो वीक मदर एक वीक बच्चे को पैदा करेगी तो हिंदुस्तान हेल्दी नहीं हो सकता, बीमार रहेगा, और बीमारी पर ही हमारा खर्चा होगा। तो अगर हम अपनी लड़कियों को खेलने देंगे, स्कूल वाले उनको खिलाएंगे, चाहे वो फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, एक बॉल से गांव जुड़ता है, एक बॉल भी काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक साइंटिफिक ट्रैकिंग है, अगर बॉल भी है तो उससे भी चलता। मैंने ये छोटी छोटी बातें ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स and in the hands of teachers. Please take responsibility to produce healthy women for the future. Thank you. रवीना जी, जब हम मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, आपने कुछ बहुत पावरफुल फिल्में की हैं, मात्र, शूल, दमन, जिसमें महिला का किरदार बहुत पावरफुल था। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक एक्टर के तौर पर कितने मौके मिलते हैं आपको ऐसी फिल्में करने के, और आपको लगता है कि अब समय आया है कि और ऐसी फिल्में ऐसी थीम्स पर बननी चाहिए जहाँ नारी शक्ति दिखाई दे? जहाँ तक मैं समझती हूँ, आई थिंक काफ़ी चेंज, बदलाव आया है हमारी इंडस्ट्री में भी, जो शायद पहले 90s में नहीं था। अगर आप किस तरीके का किरदार करते थे तो आप स्टीरियोटाइप हो जाते थे कि अरे ये इसी तरीके के किरदार कर सकती हैं। तो उस समय इन द 90s और अर्लियर डेकेड में एक स्ट्रगल होता था कि हम किस तरह से तोड़ मोड़ के एक्टर्स अपने आप को चैलेंज करने की, या मेरा मकसद ये था कि मैं हर सोशल कॉज में जिसमें बिलीव करती थी, मैं समझती थी कि मुझे सोसाइटी ने सब कुछ दिया है और मेरा यही एक माध्यम है जिस तरीके से मैं सोसाइटी को वापस दे पाऊँ, जिस सोशल कॉजेज़ के लिए मैं काम करती हूँ उनकी तरफ एक अवेयरनेस बढ़ाऊँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जहाँ तक कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे पिक्चरें करूँ। स्ट्रगल होता था, एक बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये सोशल मैसेज वाले फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलते हैं, लोग कौन जाएगा देखने के लिए, ये डिप्रेसिंग पिक्चरें हैं, ये आप ऐसे क्यों पिक्चरें करती हैं। तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ के मात्र हुआ, दमन हुआ, दमन हमने 2000 में की और आज हम 2023 में हैं, एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग मैरिटल रेप। एंड हम 23 साल पहले हमने फिल्म उस सब्जेक्ट पे बनाई जहाँ के एक अवेयरनेस भी नहीं थी कि मैरिटल रेप और डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि घरों में दब जाता है। उस टॉपिक के लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली होगी आपको? बिल्कुल नहीं मिली उस समय बहुत ही कठिनाइयाँ आई, और लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला उस फिल्म को, एंड राइटफुली सो, बिकॉज आई थिंक वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो अपने टाइम से पहले आई, और आज तक, जैसे कि मैंने कहा, 23 साल बाद भी हम उसके बारे में, हम उसी विषय पर आज तक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज की दुनिया में एक जो करेक्टनेस आनी चाहिए वो आ चुकी है, वो बदलाव आ चुका है। चाहे आप हमारी जितने हमारे टॉप पोजीशंस हैं, चाहे हमारे वो DOPs हैं जिनको हम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं, हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म हेड्स हैं, हमारी चैनल हेड्स हैं,
आज औरतें बहुत अच्छी तरह they've kind of assembled in our industry. तो वो मौके जो हमें मिलने चाहिए वो ज़्यादा मिलते हैं, because I think if a woman being at the helm of producing something, she understands those issues. वो sensitivity understand करती हैं, वो sensibilities हैं उनमें, तो वो मौके आज ज़्यादा बढ़ गए हैं जहाँ पे हमारी पे disparity की भी बात होती है. तो आज की हमारी टीवी इंडस्ट्री में औरतें, women are paid much higher actually than their male counterparts, which is a great thing because of the kind of work they do. And I think हमारी टीवी इंडस्ट्री में women rule. जहाँ के OTT प्लेटफॉर्म्स भी हुए, आप देखेंगे ज़्यादातर women protagonists हैं, women के issues के बारे में हम डील करते हैं. तो that is also something which is a very pleasant change. जहाँ तक कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ, we are going there slowly but surely, क्योंकि बिगनिंग से शायद वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है, लेकिन अब बदलाव ज़रूर आ रहा है. जैसे कि मैंने कहा, हमारी औरतें, वी हैव ब्रोकन द ग्लास सीलिंग, हम हर मेल बैस्टियन के अंदर घुस गए. अगर हम हवाई जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, जो हमारी फीमेल कैप्टन्स आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या है फीमेल पायलट्स की, जो बहुत ही एक अमेजिंग बात है. और आज तक हमको एक्चुअली विश्व में हमको डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है, किस हिसाब से मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी औरतों ने हिंदुस्तान में दे हैव गॉन अहेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सब पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है as far as progress is concerned. The second thematic session of Mann Ki Baat at 100 National Conclave was on Virasat Ka Utthan, with a special focus on instilling pride in the vibrant culture and glorious legacy of India. The session was moderated by eminent author and radio storyteller Nilesh Misra. The panel discussed how pride in our heritage and culture has made India shine brighter than ever on the world map. The panelists also highlighted how India's golden past and rich heritage are becoming the foundation stone for shaping a new India, and how Mann Ki Baat has played a central role in the nation's rediscovery of its diverse legacy. I've been a very ardent follower of Mann Ki Baat for the last 99 episodes, and I especially, my ears completely open wide every time Prime Minister Modi speaks about music. So he's spoken in the past about the various festivals in India, like the Hornbill Festival, the festival in Ladakh, and I started studying these festivals, studying, who are the musicians who are curated for these festivals. This year, in fact, in January, he spoke about how tribal persons have won a whole lot of Padma awards this year. So then I started studying about each and every Padma award winner who was a tribal person or associated with tribal people. And I realized that a whole lot of them are musicians and artists, and I started studying their art, and I realized that they're absolutely amazing people with amazing art forms, and the musicians among these tribal people were creating, had songs about nature, songs about sustainability, songs about harvest, which is amazing material that all of us in the world can learn from. And then in February, he spoke about these two musical instruments that are becoming more and more obscure. The Sur Singar, which is now, as Prime Minister Modi said, that Joydeep Mukherjee is breathing life into it. And the other instrument is the mandolin, which is becoming less and less popular in India. And he spoke about how U. Srinivas is breathing life into the mandolin. And it is amazing because for me, it was sort of like a resurgence in my life of these two instruments, because the Sur Singar sounds a lot like the sarod, but it has got a much deeper tone. And I decided to start using that in my music. So I guess, it's really important to actually, as you said, mainstream this music, simply because we ourselves in India are losing touch with our own heritage when it comes to music, our own culture when it comes to music, and music forms that are born in India, especially the ancient forms of music. We are sort of losing touch with it, and it's important to mainstream it. The third thematic session of Mann Ki Baat at 100 National Conclave was on Jan Samvad se Atmanirbharta. The panelists deliberated on how the ideas of Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local have become a Jan Andolan, and how every Indian is striving to be self-reliant by adopting local. I think all of us must know the India story in technology. Prime Minister Modi in August 2015, I think, stood on Red Fort and said, "Startup India, stand up India, digital India." What happened was a miracle, especially in startups and technology. I will talk about technology and then startups. We are the largest software exporter in the world. This year,
196 are $200 billion. 60% of global business for software comes to India. It employs 55 lakh people, 1% of India's workforce. We export more software than Saudi Arabia exports oil. Of the 10 most valuable software service companies in the world, 5 are Indian. Of the top 5, 3 are Indian. Of the 32 lakh people employed in the top 10 companies, 22 lakh are Indian. America has 60 lakh software people, 10 lakh are Indians. In India, out of 55 lakhs, about 30 lakh work for American companies. Out of 1 crore working for American companies, possibly about 45 lakhs are Indian. We dominate this field globally, and it's very important. We dominate this globally, and every year we will have more. Bangalore has 1.1 crore people, 23 lakh people work in technology. Bangalore will export $80 billion of software this year. 2.5 lakh jobs were created last year. And Bangalore has more people working in technology than Silicon Valley. On top of that, we have a startup industry which has grown since 2015 when Prime Minister Modi gave the call for Startup India and Stand Up India. We have 96,000 startups, number 3 in the world after the United States and China. And these people employ 16 lakh people today. 108 unicorns. They created $500 billion of value. And the world has 1,352 unicorns. United States, 830, China, 205, India, 108. But in the 3 countries out of 1,348 or so, 1,200 are in these 3 countries. No UK, no Japan, no Germany. They're very small countries compared to what India has done. And by 2025, we hope to have 200 unicorns. We'll employ 36 lakh people or more. And we will create value of $1.5 trillion. And in all fields of activity, India dominates this area. Bangalore has 300,000 chip designers, testers, and embedded software people, the largest collection of human talent in the world for silicon chip design industry, more than the United States, more than Taiwan, more than China. And this is only going to grow by 2026, 2025. By 2025-26, we'll have more people working in technology than the United States of America. As their life mantra, the 4th and final thematic session of Mann Ki Baat at 100 National Conclave was on Ahvan se Jan Andolan, featuring popular cinestar Shri Amir Khan and other eminent voices. The panelists discussed how Mann Ki Baat has been a propeller of various mass movements that India is witnessing today and how it has furthered the vision of public participation. The valedictory session of the day-long mega national conclave Mann Ki Baat at 100 was held in the presence of Shri Amit Shah, Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperation. He also addressed the packed plenary hall of Vigyan Bhavan on this occasion. मित्रों, आज हम एक अद्भुत प्रयोग जिसने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया, लोकतंत्र के अंदर इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आनंद की बात है कि आकाशवाणी को जन संवाद के लिए चुना, क्योंकि मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि ढेर सारी महत्वपूर्ण यादें मैंने आकाशवाणी पर ही सुनी है। भारत और बांग्लादेश में भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है।
इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित हो गई। ढेर सारे समाचार जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको मालूम होगा कि आप तक वहीं पहुंचे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से ही पहुंचे हैं। और मैं संगीत का शौकीन आदमी हूं। दूर दराज इलाकों में, सीमांत क्षेत्रों में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे, जयमाला। और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित श्रोता हुआ करता था। दूर दराज के गांव के अंदर भी उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के, हर अंचल में, हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया है। एक प्रकार से मन की बात का वर्णन करना बहुत कठिन है, मगर मुझे अनुराग भाई ने खड़ा कर दिया है तो मुझे बोलना ही है, इसलिए मैंने चंद शब्द आपके सामने कहा है। अंत में मैं एक कविता का 2 लाइन पढ़कर करूंगा। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल वो दूर नहीं है। सितारे के लिए कहा है, थक कर बैठ क्या गए भाई, मंजिल दूर नहीं है, आगे बढ़ो। यही प्रेरणा मन की बात हमें देती है। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों की ओर से और अमित शाह भारत के सिटीजन के नाते मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि सार्थक संवाद उन्होंने शुरू किया और फिर से युवा आकाशवाणी को सुने, ऐसी अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। This brought to a conclusion the National Conclave on Mann Ki Baat at 100 held earlier today at Vigyan Bhavan in New Delhi. May we remind you, dear listeners, that the 100th episode of Honorable Prime Minister's monthly radio program Mann Ki Baat is scheduled for broadcast on Sunday, the 30th of April at 11 a.m. Do tune in. With that, we come to the end of this radio report on the National Conclave Mann Ki Baat at 100. Scripted and narrated by Bhuvan Apurva Jha, produced by Pramod Kumar. This radio report came to you from the Delhi station of All India Radio.